A nursing course. This is a course for all the nurses, all kinds of specialty nurses, GNM nurses, ANM nurses, BSc nurses, MSc nurses, even doctors and technicians can attend, and anybody who is related to healthcare delivery system. And this course will be enhancing because we are going to touch upon all the hands-on experiences relevant in critical care practice. So the best part of this course is that it is not only a lecture, it's hands-on. Hands-on means we will teach you how to handle the different gadgets, machines, bedsides. So it's a combination of your soft skill, lectures, and the hands-on experiences. At the end of the course, you will be allowed to, experience the total experience of an ICU, but the minimum requirement is that every class, whatever we are going to speak, you have to make a notes of it. If you are not able to understand the class, there is a YouTube link of this class which you can go through the YouTube, and you can find out the your queries and whatever the answers we have given. We will go very slow, very systematically, very simple. We will not use any medical jargon, and everybody has to maintain a logbook. Now every Thursday this course will be held from 9 to 10 at SSB Delhi. Now before that, whosoever is present here in our classroom, they will hand over the logbook before the next week, Yes, sir. so that it is signed by Julie, our ER head, Dr. Sanjeev, even Dr. Nandita, and finally by me. So logbook assessment is the most important. If you don't, because our 60% of our scoring is on logbook, entry. Then at the end of the course, there will be a multiple choice question and viva voce, and you will be given a certification. I'm telling you, this certification not only for enhancing your life, you will be a better professional. Wherever you will go, people will love you, people will admire you, and you will develop that communication skill, and you can grow as a leader in that profession. And this is what we call empowering the nurse, and that is the this year's theme we are talking about. If you are talking about the nurses are for today, not for the futures. The whole world needs nurses because there's a tremendous amount of shortage of nursing professional in the world. So we have to empower the nurses. We have to give them the right dignity, the right knowledge, the right mindset, the power. And power will only come when you empower them, and empowering is only possible when you skill them. So skilling is not only that I know it, skilling is the right communication, the manners, how you conduct, the leadership quality, all those things will come at the end of. It's not only simply a classroom lectures. We will also groom you as a good personality, how you communicate, how you talk about, to the patients, bedside manners, non-verbal communication, everything will be taught to you in between the classes. So today is the first class, and though we are talking about 12 weeks, 12 weeks is basically the classes we will be talking about it. But this thing will continue. Once we know that all the logbook is adequately updated, then we will suitably conduct the exam. Normally, my thought process says that probably this will take about 3 months. Yes. 12 weeks of the classroom lectures and hands-on. So 3 months you have to upgrade yourself. I'm telling you, you don't have to read any other books. Just go through my YouTube lectures, and I'm sure you will go to the next level. Last week we have introduced a course. What exactly? The whole concept I'll repeat here is learn, practice, and excel. That means if you learn and you practice, excel. Who are behind? Dr. Sanjeev Kumar. Just give a round of applause for Dr. Sanjeev. He is a head of intensive care. Nandita, she's our our resident medical officer. Our nursing superintendent. Nantha, our head. And also I've used Neha. She will coordinate with the ICU because she's an infection control nurse. Is a very important part of it. So thank you. Please take your seat. So it will be every 1 hour session will 10 minutes we'll talk about concepts, then we'll give you demonstration, 20 minutes hands-on, finally we will ask you questions. This is not one-way lecture, it's not monologue. It's not that I am talking, you're listening.
Once we are done, 10 minutes there will be interacting. You will ask me questions. You will ask the fraternity the questions. What is this? What is that? You will come here, you will interact. Okay. Now everything is being recorded. I'm starting the class. So first thing is that why oxygen is important. I told you oxygen is our God, our Lord. Without oxygen, we cannot live. This is one gas which is odorless, is essential for life, and there are few unique properties of this gas is that 21% of the air is oxygen, almost 21%, which is 20.98, and that is how the lungs take it. It forms 46% of the earth crust. If you take the total body composition of the, it comes for separation, it comes to 65% of human body, and it is the third most abundant element in the planet after hydrogen and helium. And plants give us, so that's why biodiversity is very important. They say the evolution of oxygenation, it is an interstellar explosion. The stars given us the oxygenation, and that is how it becomes a part of life. So we will talk about oxygen delivery system. Can I have the first slides? Now, today we will talk about oxygen delivery system. Now, what does oxygen do? When we breathe, the air goes into the lungs, through the nose, through the throat, what we call the pharynx, then larynx. It goes to the two bags of lungs, what we call the right lung and left lung. We have a bronchial tree. Finally, we have the end of the tree, what we call alveoli, you all know. And it goes up to the alveoli. From there, it gets, it enters a capillary, which is called lung capillaries, and from there, it enters the heart. From heart, it is get distributed. Now, if the oxygen is distributed through the blood, so what does it oxygen do it? Oxygen acts as a cellular respiration. Now, what is the difference between cellular respiration and combustion? In our body, whatever we eat, it gets converted into glucose. Glucose gets oxidized by oxygen. What happens? The glucose with the insulin carries to the different tissues at the cellular level. It has to be processed, and you need oxygenation. So, oxygenation and the glucose, they form some chemical reaction, what you call a Krebs cycle. In that process, we get energy. This energy is called ATP, adenosine triphosphates. With one molecule of glucose, we make 36 ATPs. And depending upon the energy you require, if you want to run, you need more ATPs. If you want to think, you need certain amount of ATPs. So every ATP is an energy packet. It is stored in our body. About 7 calories is one ATP. So this is how the body has a systematic way of spending energy. Without oxygenation, you cannot have cellular respiration. It's something like in combustion, when you cook food, without oxygenation, there cannot be any combustion. But in our body, there is no sudden release of energy. It's all systematic packets of release of energy. That is called cellular respiration. That this will be your first question, which will be asked, the difference between respiration and combustion. Combustion means the way we cook a food, you put on a burner, it cooks the food, suddenly the energy is released. When in our body, the body doesn't release suddenly the energy. It gets stored into small packets. So it is a systematic synthesis of energy in the packets. This is called respiration. So you will be asked the difference between cellular respiration and combustion. And what is this process is called? This process is called oxidative phosphorylation. Just you need. What happens? Oxidative means oxygen combines with the glucose through a cellular process. It is called oxidative phosphorylation. That means phosphorylation happens, produces adenosine triphosphate. You must know what is ATP. ATP, every ATP you need certain, for whatever you do, you need energy. Now, whenever there is a crisis, you have to give oxygenation, because if the oxygenation doesn't reach your blood, you may not survive. Now, there are few situations when during oxygenation, suppose somebody is not breathing, you have to give oxygen. Somebody who is breathing very hard, that means he is not able to cope up with the situation, you need oxygenation. Somebody who is hit hard on the brain or a head injury, the drive is gone because our respiratory center is on the brain, neck brain, what you call brain stem. So you need oxygenation. Sometime after operation, if the patient is under the influence of sedation, he is not able to breathe, there's a lung goes into a atelectasis or collapse, you need to give oxygenation. So different situation. There may be emergency, somebody has aspirated foreign body, there is a choking, you need oxygenation. If there is a cardiac event like an acute myocardial infarction,
tissues are getting less oxygenation, you have to give oxygenation. So oxygenation at different has a different indications. So my sessions will be very simple. We will talk about 5 to 6 slides. What are the different devices? There are two devices, low flow devices, high flow devices. What is Venturi and cylinders? These are very important. Indications, what is VQ mismatch and shunt, and what nurses must know. These slides, these are the things that you should know. What are the things you're supposed to know? आपको क्या जानना चाहिए? अल्टीमेटली क्लास होने के बाद बहुत सारी बातें नहीं जानना चाहिए, ये निचोड़ जानना चाहिए. 5 बातें मुझे आनी चाहिए. First, why do we give oxygen? All these slides have been shared in your nursing WhatsApp group. You can download these slides from the nursing group. Those who are additional students who are joining this class, we can you can share those slides to them. These all slides have been shared. Now, the first thing what we have written is that, ये pointer है क्या ये रेड में इस पे काम नहीं करेगा. हाँ, इसमें नहीं आता. इस पे इनबिल्ट जो होता है वो वाइट है, इसलिए आ नहीं पाता. ठीक है. इससे ले यार लेजर. सबसे पहले क्या लिखा है? हाइपोक्सीमिया. If the oxygenation is less than 94% and the partial pressure of oxygen less than 60 millimeter on room air is the most common reason. So either you can check up, sometimes oximeter can pick up, maybe he's not. You have to see the first thing. What are the first, before putting the oximeter, can anybody say? There should not be any nail polish. Yes. So if there is a nail polish, many times, we get into panic situation. In the women, we have the nail polish. How do you clean nail polish? There might be some alcoholic. Acetone. You have acetone. Clean with acetone. Check the oxygenation. If it is low, it is hypoxemia. Many times what happens? Patient BP is low. The periphery capillaries are cold. So you may not get. So you have to do an ABG. If the ABG shows room air is 21%. If the oxygenation is less than 60 millimeter, you need oxygen. Is it clear? Acute MI. In acute MI, it reduces the ischemic myocardial demand. Give only if it is 94%. What happens whenever there is an acute injury to the heart muscles? Because what is the heart is doing? Heart is pumping the blood to the different tissues. If there is an acute heart attack, that tissue is getting less oxygenation. Demand is more, na? So you have to give if it is less than 94%. Post-operative anesthesia. Many times what happens? Somebody is under the influence of anesthesia. The surgeon has operated. Patient is coming out of anesthesia. You will find many times, when we do bronchoscopy or when you are post-operative, you find the patient oxygenation because the drive is poor. And the lungs are collapsed, what you call atelectasis. Atelectasis means collapse of the lungs. There also you have to give oxygenation. Respiratory failure. Respiratory failure means if the oxygenation is low, we call it respiratory failure. There are two types of respiratory failure. Either there is a low oxygenation and normal carbon dioxide or low carbon dioxide. This is one situation. Either carbon level is low or normal, but oxygen is low. It's called type 1 respiratory failure. Or oxygenation is low and carbon is high. In certain chronic lung conditions, it happens, or what you call ventilatory failure, or the patient is not having the good drive. So there are two types of respiratory failure, type 1 and type 2. In both the condition, oxygenation low. In one type 1, either it is a normal carbon dioxide or low carbon dioxide. Normal carbon dioxide is roughly around 40. If it is not less than 40 or 40 is type 1 with low oxygenation. If it is more than 40 and low oxygenation is called type 2 failure.
Carbon monoxide poisoning. Tell me a common situation of carbon monoxide poisoning. How can it happen? You know, all those things, fire injuries, what have happened? A house has, like this war is going on, there may be suddenly and fire injury, a lot of fire injuries happen, or maybe you have seen in the villages, people burn those koila, that also gave right over. So carbon monoxide has a huge affinity for oxygen. It does not allow oxygen to come in close with the hemoglobin, because normally our oxygen is carried by hemoglobin. It's called oxyhemoglobin. But if you have carbon monoxide, when there is something, when you are exposed to this kind of carbon monoxide toxicity, so what happens? You need very high level of oxygen to remove carbon dioxide from the hemoglobin. So carbon monoxide poisoning. So whenever you get, you know, fire injuries or intoxicated injuries or this kind of, you know, fossil fuels or all those carbon monoxide angithi exposures, they, you know, in the winters they'll sleep with the angithi, they can get carbon monoxide. A lot of eventualities happen. So you need to give oxygenation because carbon monoxide has a high affinity for hemoglobin. Then last is cardiac arrest and trauma. 100% oxygen during resuscitation, titrate with ROSC. What is ROSC? Can anybody tell? Very good. What's your name? Very good. ROSC means reverse of spontaneous circulation. आपने CPR किया, reverse हो गया. तो 100% during resuscitation, कितना? Till you reach 94.2. Reverse of spontaneous circulation, ROSC. ठीक है? तो ये slide, this slide has been shared. Any question about this slide? You can ask me questions. We have to go very slow. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर? पूछना है तो पूछो. We'll go to the next slide. किसी को पूछना है? Yes or no? No. Okay. Now, what is VQ mismatch? Ventilation perfusion mismatch. देखिए वेंटिलेशन किसको कहते हैं? ये देखो, मैंने सांस लिया, लंग्स में चला गया, इसको कहते हैं वेंटिलेशन. Ventilation means the process by which we bring air into the lungs. Will you remember? Ventilation. So how does a ventilation happen? There is we breathe, but normally our atmosphere pressure is zero. ये हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, we are in zero atmospheric pressure. So how the air will flow? Air flows from high pressure to low pressure. तो zero में कैसे आएगा हवा? So we create a negative pressure. प्लूरा नेगेटिव खींचता है. So we create a negative pleural pressure. Suction करते हैं, हम सक करते हैं एयर को. याद रखना, हमें पता नहीं चलता. But God has made it so beautifully. We suck air. This is called negative pleural pressure. -2 to -8. ये देखो, ऐसा कर रहे हैं पर पता नहीं चलता. It is so beautifully God has done a little symphony like a music. But तकलीफ कब होता है? जब आपका लंग्स फूलता है, या वजन बढ़ता है, या हार्ट अटैक होता है, या लंग्स पे पानी भर जाता है, या निमोनिया होता है, तब आपको महसूस होता है कि हम खींच नहीं पा रहे. और अदरवाइज ए हेल्दी लंग विल नॉट फील इट. यू आर सिटिंग, यू विल नॉट फील हाउ मच यू आर ब्रीदिंग. इट्स अ सकिंग इफेक्ट. आप देख रहे हो ना, ब्रीदिंग इज द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैपेंस, पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल. पंप मतलब आपने पंप देखा जो गांव में पंप होता है. व्हेन यू पुश द पंप, आवर लंग गोज आगे. एंड व्हेन यू बकेट हैंडल मींस जैसे बाल्टी उठाते हो, बकेट हैंडल जैसे आप नहाने के लिए बकेट उठाते हो, आवर लंग गोज लाइक दिस. इज कॉल्ड एंट्रोपोस्टीरियर एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. जब सांस लेंगे तो ऐसे भी खुलना चाहिए, ऐसे भी खुलना चाहिए. सो देयर इज एन एक्सपेंशन फॉरवर्ड, देयर इज एन एक्सपेंशन लैटरल वर्ड. सो देयर आर टू मूवमेंट्स, पंप हैंडल मूवमेंट, पंप आपने देखा ना, ट्यूबल पंप, पंप मूवमेंट, और दूसरा बकेट हैंडल. बकेट हैंडल से ऐसा खुलता है लंग्स, पंप हैंडल से आगे खुलता है. आप समझ गए ना. दीस तो हमने क्या लिया? वेंटिलेट किया. अच्छा, परफ्यूशन क्या है? सिर्फ वेंटिलेशन से तो काम नहीं चलेगा, खून भी तो आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन कौन लेगा? ब्लड लेगा ना. तो परफ्यूशन, परफ्यूशन कहां से होगा? कैपिलरीज के थ्रू. नॉर्मल याद रखना, ये अनदर क्वेश्चन है. वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशियो हमारे शरीर में 0.8 होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 0.8. दिस विल बी अ क्वेश्चन आस्क्ड. व्हाट शुड बी द वेंटिलेशन परफ्यूशन रेशियो? कितना होना चाहिए? 0.8. अच्छा,
नॉर्मल में क्या होता है? एल्वियोलाई वेंटिलेशन एंड परफ्यूज ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंटली, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन 94 to 100%, एग्जांपल हेल्दी लंग, ये आप लोगों के साथ है। अब हम अनहेल्दी लंग्स पे जाते हैं। तो ग्रीन इज हेल्दी। लो VQ कहां होता है? लो VQ का मतलब है, VQ का मतलब क्या है? ये वर्ड हम यूज करेंगे आगे चल के आईसीयू में। मैं पूछूंगा सिस्टर व्हाट इज अ VQ मिसमैच, आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं व्हाट इज VQ मिसमैच। Q का मतलब होता है, V का मतलब होता है वेंटिलेशन। सो VQ मिसमैच। तो एल्वियोलाई परफ्यूज हुआ है, मतलब एल्वियोलाई को खून मिला है बट हवा पहुंचा ही नहीं, तो ब्लड पासिस विदाउट पिकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा सिचुएशन क्या होगा? निमोनिया, लंग्स के अंदर इंफेक्शन आ गया। ऐसा हो गया म्यूकस प्लगिंग, अंदर बलगम फंस गया, या एस्मा, एस्मा में एयरवे नैरो हो जाता है, COPD। तो ना VQ मिसमैच पूरी तरह बंद नहीं हुआ, थोड़ा बंद हो गया, जैसे दिल्ली की सड़कें है, गाड़ी स्लो हो गई, पूरा बंद नहीं हुआ। तो पूरी तरह वेंटिलेशन हो नहीं पा रहा बट पूरा ब्लड पहुंच चुका है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वेंटिलेशन परफ्यूशन। तो वेंटिलेशन परफ्यूशन कहां का होगा? निमोनिया, बोलो निमोनिया, COPD, एस्मा, और क्या? म्यूकस प्लगिंग। ये आईसीयू में म्यूकस प्लगिंग हो जाता है ना। विल यू रिमेंबर दिस? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना। अब देखो ऐसा सिचुएशन है, नो वेंटिलेशन एट ऑल, जीरो जीरो, पहुंच ही नहीं रहा ऑक्सीजन। उसमें तो थोड़ा पहुंच रहा है, एस्मा में तो थोड़ा पहुंच रहा है, COPD में तो थोड़ा पहुंच रहा है, निमोनिया में एक ऐसा सिचुएशन हो पहुंच ही नहीं रहा एयर। बताओ कहां? पूरा भर गया पानी से, पल्मोनरी एडिमा, ARDS, पूरा लंग्स व्हाइट हो गया जैसे कोविड में हो जाता था। और क्या होगा? लोब कोलैप्स हो गया, किसी ने फॉरेन बॉडी या कैंसर के कारण ये लोब ही चिपक गया, तो कैसे वेंटिलेशन होगा? ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? शंट। क्या कहते हैं? शंट। शंट मतलब है एयर नहीं पहुंचा, खून निकल गया, पूरा खून को मिला ही नहीं ऑक्सीजन, तो शंट हो गया ना। जैसे मान लो इस कमरे में ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन मिला ही नहीं, सीधा चला गया, शंटिंग हो गया। शंट समझते हो? तो शंट कब होगा? वेंटिलेशन हुआ ही नहीं, तो कौन सा सिचुएशन होगा? ARDS, पल्मोनरी एडिमा। ये पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड वेल टू ऑक्सीजनेशन, सिर्फ ऑक्सीजनेशन नहीं बट देना पड़ेगा, वो सब हम बताएंगे। या मास्क रखा हुआ है, उस लंग्स को कैसे हम ऑक्सीजनेट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। वहां ही जीवन आपको बचाना है। ऐसा सिचुएशन होता है ना कि जिसका हार्ट अटैक हो गया, लंग्स में पानी आ गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, ऐसा है लंग्स के अंदर पूरा भर गया, निमोनिया हो गया, है ना। या मान लो पूरा लंग कोलैप्स पड़ा हुआ है, कैसे करोगे? सिर्फ ऑक्सीजन देने से नहीं चलेगा, ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, वो भी तरीका बताएंगे कैसे पहुंचेगा, कैसे लंग्स खोलोगे। तो आपने क्या सीखा? देयर आर टू सिचुएशन, VQ मिसमैच एंड शंटिंग। नॉर्मल रेशियो VQ कितना होता है? वेंटिलेशन, सारे बोलो 0.8। कितना होता है? 0.8। सो शंटिंग में क्या होता है? VQ 0 हो जाएगा, पूरा खून निकल गया, वेंटिलेशन 0, तो 0 बाई नंबर इज 0, ठीक है। और लो में क्या होता है? लो VQ में क्या होता है? 0.8 से नीचे होगा, क्योंकि वेंटिलेशन कम है, परफ्यूशन, तो 0.8 से नीचे होगा। सो VQ मिसमैच में VQ रेशियो विल बी लेस देन 0.8 एंड इन शंटिंग इट विल बी 0। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके। Now, what nurses need to understand? Shunting occurs when blood passes through the lungs without being oxygenated. ये मैंने आपको बोला है. The alveoli are perfused but not ventilated. Giving more oxygen through a mask cannot fix a true shunt. सिर्फ ऑक्सीजन देने से नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा, उसमें वेंटिलेट भी करना पड़ सकता है, या बाई लेवल वेंटिलेशन भी दिया जा सकता है, जो ये लोग बोलेंगे अभी। तो कॉमन कॉजेज इन आईसीयू याद रखना, ये पूछा जाएगा। ARDS, सीवियर निमोनिया, ये सारा स्लाइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यूट्यूब में भी मिलेगा, स्लाइड में भी मिलेगा। मैसिव पल्मोनरी एडिमा, लोबर टोटल लंग कोलैप्स, इंट्राकार्डियक डिफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा मेरा एक पेशेंट एडमिट किया था, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। कई बार क्या होता है कि दोनों हार्ट के बीच में छेद होता है, तो उसमें क्या होता है, रेड एंड ब्लड, जो हमारा रेड ब्लड और ब्लू ब्लड मिसमैच हो जाता है। तो आपने यहां से दिया, यहां से निकल गया, वहां भी शंट है,
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शंट, वन इज अ लंग शंट, अनदर इज अ कार्डियक शंट। कार्डियक शंट जो सर्जन, अभी हमारा कार्डियक लैब शुरू हो जाएगा ना, तब आपको कार्डियक शंट के डिजीज, इंट्राकार्डियक डिफेक्ट्स, इंट्राकार्डियक डिफेक्ट्स याद रखना। अगर आप पूछ सकते हो कि सर इनका तो कोई लंग का प्रॉब्लम लगा ही नहीं, तो फिर ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है? हो सकता है इसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। क्या है? कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। हो सकता है उसको सेप्टल डिफेक्ट हो, आइजनमेंगर सिंड्रोम हो, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट हो। तो आपको इको भी करवाना चाहिए इन ए सिचुएशन लाइक दिस टू फाइंड आउट कोई डिफेक्ट है कि नहीं। आप समझेंगे ना, सेप्टल डिफेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज अ मैनेजमेंट? मैंने ये स्लाइड देखिए बहुत सोच समझ के बनाया। आई हैव मेड ओनली टेलर मेड फॉर नर्सेस। व्हाट इज योर रोल? हाई फ्लो अलोन विल नॉट रिवर्स शंट। याद रखिएगा ये चीज, यही आपको कंसल्टेंट बनाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन देने से ये बात नहीं बनेगी। आप सोच रहे हो पेशेंट सांस नहीं ले रहा, 60% ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन दिए ही जा रहे हो, नहीं, आपको क्लीन करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करना पड़ेगा। एक दिन में तो एआरडीएस ठीक नहीं होगा, तो आपको कुछ वेंटिलेट आइदर इन्वेजिव वेंटिलेट करना पड़ेगा या नॉन इन्वेजिवली वेंटिलेट करना पड़ेगा, या उसका बलगम साफ करना पड़ेगा, या उसको पैसेज क्रिएट करना पड़ेगा, या उसकी फ्लूइड कम करना पड़ेगा, या उसको डायलिसिस करना पड़ेगा, या हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सिर्फ ऑक्सीजन देने से शंट इंप्रूव नहीं करेगा। इज इट क्लियर? बट देना पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा? हाई फ्लो अलोन विल नॉट रिवर्स द शंट। इज इट क्लियर? यू हैव टू एस्केलेट टू एनआईवी, सीपैप, बाईपैप, ये जो मास्क को बनाना है। चेंज कर दिया आईसीयू प्रैक्टिस, सी लेवल एंड बाई लेवल। ये चीज दुनिया को बदल दिया है। आजकल हर एक को इंट्यूबेट करने की जरूरत नहीं है, मास वेंटिलेशन आ गया आजकल, जिसको हम कहते हैं बाई लेवल वेंटिलेशन एंड सीपैप। इसका अलग क्लास होगा, उस चीज के ऊपर मेरी अलग स्पेशलिटी है, इसके ऊपर मैं काम किया पिछले 30 साल से। हाउ द नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन हैज चेंज द वर्ल्ड। मतलब आपने उसको वेंटिलेट नहीं किया, ट्यूब नहीं डाला, बट उसको ऐसा सेटिंग किया कि उसकी लंग्स खुलने लग गया। इसको नॉन इन्वेसिव, इसको कहते हैं एनआईवी। क्या कहते हैं? एनआईवी, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, उसमें दो चीजें आता है, सीपैप एंड बाईपैप। वो अलग से क्लास होगा। सीपैप स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एंड बाईपैप इज बाई लेवल पॉजिटिव एयर। दोनों अलग चीज है। सीपैप वेंटिलेटर नहीं है, सीपैप सिर्फ ऊपर का स्प्लिट खोलता है, पल्मोनरी एडिमा में बहुत काम अच्छा करता है। बाईपैप मतलब सांस लेते वक्त भी सपोर्ट देता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और छोड़ते वक्त भी सपोर्ट देता है। इट्स अ बाई लेवल, इट गिव्स यू सपोर्ट बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और क्या करना पड़ेगा? डायरेटिक्स। पल्मोनरी एडिमा है, पानी भर गया उसके लंग्स के अंदर, बैक प्रेशर चेंजेस आ रहे, यू हैव टू यूज डायरेटिक्स। अगर एआरडीएस है, इन्फेक्टिंग निमोनिया है, 30,000 ब्लड टर्न, यू हैव टू यूज हाई जनरेशन एंटीबायोटिक्स। फिर डॉक्यूमेंट SpO2 ट्रेंड। ट्रेंड, आपका काम है ट्रेंड देखना। सर पेशेंट आया था 70%, अब वो 85 में आ गया, इंप्रूव कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया होगा। आइदर उसका बलगम निकाला, या एनआईवी दिया होगा, या उसको डायरेटिस दिया होगा, या अंडरलाइन कॉज को इंप्रूव किया है। ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट इज अ नर्स रोल? नर्स रोल इज टू सी द ट्रेंड। लगा के भाग गए वो नहीं है, यू हैव टू होल्ड द फोर्ट, यू हैव टू स्टैंड देयर एंड मॉनिटर इट एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। कब? If it progressively low, despite all your techniques, despite giving high flow system, we'll teach you what is high flow system, despite giving non-invasive ventilation, despite taking care of diuretics, patient is worsening. तब आपको क्या करना पड़ेगा? Intubation and put it on a ventilator. उसमें पूरा पैरालाइज करके उसको डालना पड़ेगा। Is it clear? Any question on this slide? Any question on this slide? So shunting में सिर्फ ऑक्सीजन देने से बात नहीं चलेगी, देना पड़ेगा, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट दवाई देनी पड़ेगी, डायरेटिक्स देना पड़ेगा। ना रेस्पॉन्ड करे तो क्या करना पड़ेगा? इंट्यूबेशन। नाउ लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस क्या होता है, यही चीज सीखना है आज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस। लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस सेट फ्लो रेट, but the actual FiO2 varies with the patient breathing, tidal volume and respiratory rate. लो फ्लो का मतलब है आपने ऑक्सीजन तो लगा दिया, बट आपको पता नहीं है कितना जा रहा है, क्योंकि उसकी सांसें आइदर वो हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, या लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, एस्मेटिक है, COPD है, निमोनिया है। आपको प्रेडिक्ट नहीं चल रहा कितना जा रहा है उसको।
आपको इनडायरेक्टली पल्स ऑक्सीमीटर और एबीजी से मॉनिटर कर रहे हो. सो व्हाट इज लो फ्लो मीन? यू आर गिविंग ए ऑक्सीजनेशन थ्रू ए डिवाइस, बट it varies with the pattern of breathing. If the patient is breathing fast, it will get less. If it is slow, so it is function of the breathing pattern and the respiratory rate. जैसा उसका रेस्पिरेटरी रेट चेंज होगा, बिकॉज अगर रेस्पिरेटर हाई होगा तो प्रेडिक्शन कम चला जाएगा. सो इट इज नॉट गिविंग यू एक्यूरेट ऑक्सीजनेशन डिलीवरी. इज इट क्लियर? क्योंकि पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता रहेगा. निमोनिया में फास्ट हो जाएगा, सीओपीडी में फास्ट हो सकता है या स्लो भी हो सकता है. इफ देयर इज एन ट्रैपिंग ऑफ एयर, he will find it difficult to breathe out. So it depends on, actually it is a function of your breathing pattern. इसमें सबसे पहले nasal, एक जने, somebody will come and come. Nasal cannula निकालो. I will. The first thing is nasal cannula, जिसको हम कहते हैं nasal prongs. Nasal prong कहाँ है? नहीं, ये तो लॉन्ग वाला, छोटा वाला कहाँ है? हाँ, निकालो. नहीं, कट वाला अलग है. ठीक है. ये ट्यूबिंग है सर. ये सारे पास ऑन करो, फील करो, देखो, फील करो इसको. इसके अंदर क्या क्या है? फील द नेजल प्रॉन्ग. इसमें खास बात क्या है? आई विल आस्क यू. फील इट, पास ऑन, फील इट. जल्दी जल्दी करो. ठीक है, क्या फील किया इस नेजल प्रॉन्ग में? इसके अंदर क्या खास बात है? कैन एनीबडी से व्हाट इज देयर? किसी इंसान सांस में तकलीफ हो रही है, उसको सांस नहीं ले पा रहा, नेजल प्रॉन्ग से उसकी ऑक्सीजनेशन बढ़ा रहे हो, उसमें खास बात क्या होनी चाहिए इस प्रॉन्ग में? कोई बता सकता है? पेशेंट फीड ले सकता है, नंबर 1. और क्या होना चाहिए? कंफर्ट, कन्वीनियंस. और क्या? कम्युनिकेट कर सकता है. और क्या? वेरी गुड. और कम्युनिकेशन हो सकता है, फीडिंग हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है. और क्या हो सकता है? इंजरी प्रिवेंट हो सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाक में अगर उंगली डाल रहा है तो आपको छींके आएगी ना. इट शुड बी योर नोज फ्रेंडली. इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल. नहीं होना चाहिए. इसीलिए याद रखना, जब भी नेजल प्रॉन्ग आप यूज करते हो, पहले एक पानी की ग्लास में उसको बुलबुला चलाओ, so that it remains softy, क्योंकि इस ड्राई वेदर में ड्राई हो जाता है नेजल प्रॉन्ग. सो इट शुड बी वेरी सॉफ्ट. तभी आपने देखा न्यू प्रॉन्ग के अंदर एक सॉफ्टीनेस है. और उसको सॉफ्ट कैसे करोगे? टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, रन थ्रू द वाटर, यू विल फील द बबल. तो उससे क्या होता है? पानी से सॉफ्ट हो जाता है. अब मुझे बताओ, नेजल प्रॉन्ग कैसे लगाते हैं? कैन समबडी डेमोन्स्ट्रेट मी? ओके, आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू. तो एक तो मैंने बोला, आपने बोला, इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, इट शुड बी वेरी कन्वीनियंट, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट. अब इसको क्या करना है? 90% लोग ना ऐसे लगा देते हैं, गलत तरीके से. कैसे लगाते बताओ? गलत तरीके से कैसे लगाते हैं? नॉर्मली मैं आपको सही तरीका, नाक में लगाया ऐसे. दिस शुड बी योर वे. अगर आप उसको ऐसे लगा दोगे ना, तो उसके सर पे लगेगा, चुपेगा, सो नहीं पाएगा, हर्ट करेगा. सो ऑलवेज कैसे करना है? कान के पीछे, और इसको पानी में बुलबुला डाल के सॉफ्ट करके लगाना है. देखो कितना सॉफ्ट है ये. यू सी हाउ सॉफ्ट इज. और मैं आपको दिखा दूंगा वार्ड में, जो पुराने जो वार्ड में लगा हुआ हार्ड हो गया वो. तो नर्स का रोल होता है बीच बीच में पानी डाल के इसको सॉफ्ट रखना. मैं नॉर्मली टेल इन माई इंटेंसिव केयर प्रैक्टिस, कीप इन ए प्लास्टिक बैग. अगर आप मेरे कमरे में आके देखो, ऑल नेजल प्रॉन्ग्स इन ए प्लास्टिक बैग. उससे क्या होता है? एक तो इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरा ये सॉफ्ट रहता है. ठीक है. तो नेजल प्रॉन्ग से क्या होता है? अप टू 6 लीटर तक दे सकते हो. अच्छा, एक चीज याद रखना, नॉर्मली हमने कितना बोला? ऑक्सीजन कितना होता है? कितना होता है बोला है मैंने? कहां गया वो बोर्ड पेन? हाँ, नॉर्मली कितना होता है ऑक्सीजन? नॉर्मली FiO2 21% होता है एयर में. इस रूम में हम सारे कितना परसेंट ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं? अच्छा, अगर किसी को नेजल प्रॉन्ग दे रहे हो 1 लीटर, 1 लीटर में कितना जाएगा? 4% बढ़ेगा. याद रहेगा? तो उसका कितना हो गया? 25. तो 25 पर 4, ये 25 हो गया.
2 लीटर में 8, याद रहेगा, डबल कर दो तो कितना हो गया, 21 प्लस 8 29। 3 लीटर में कैसे होगा, 12, तो 21 प्लस 12 कितना हुआ, 33। ऐसे 4 5 6 ये हो गया 16 20 24। मैक्सिमम प्लस 24 दे सकते हो, कितना दे सकते हो, 6 लीटर मीन 6 4 24। तो मैक्सिमम नेजल प्रॉन्ग में कितना दे सकते हो, 24 प्लस 21 कितना हुआ, 45। दिस इज द मैक्सिमम वी कैन गिव इन नेजल प्रॉन्ग। ऐसा नहीं है आपने 12 लीटर में सेट कर दिया, कोई फायदा नहीं है, हमारा डेड स्पेस और फुल हो जाता है, रिजर्वर फुल हो जाता है। तो नेजल प्रॉन्ग में मैक्सिमम कितना दे सकते हो, अप टू 6 लीटर। 1 लीटर इज 4, एवरी लीटर इज 4 4 एक्स्ट्रा, 6 इज 24, याद है, 6 इज 24। तो अगर किसी को 6 लीटर में ऑक्सीडेशन नॉर्मल आ रहा है तो कितना परसेंट ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा है वो, बताओ, 24 plus 21. So, if you find a patient requiring 6 liters and his oxygenation is 94% or more than 90%, so what is the FiO2 you're giving? 45%. क्यों जरूरी है, मैं देखता हूं एबीजी, हर आदमी एबीजी करके, एबीजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एंटर करना पड़ता है FiO2, अदरवाइज एल्वियुलर ऑक्सीजन जो है डिसोसिएशन कोएफिशिएंट ही गलत हो जाता है। आप 21 में FiO2 में एबीजी देख रहे हो बट पेशेंट 45 में है, सो ऑलवेज यू रिमेंबर टू अवॉइड कंफ्यूजन, डू एबीजी ऑन एयर। एयर का FiO2 कितना है, 21, चाहे वो हाइपोक्सिक हो। आप किसी को 6 लीटर लगा के एबीजी कर रहे हो, गलत आएगा, आप समझ गए, बिकॉज FiO2 कितना हो गया, 45। इज इट क्लियर? सो नेजल कैनुला में most comfortable patient can eat, talk, sleep. Rule of thumb, 1 liter at 40%. Ensure prongs curve outside down into nostrils. ये समझ में आ गया? तो कौन कौन से चीजों में लो फ्रॉन्ग, जहां आपको लगता है कि ब्रीदिंग रेट फ्लक्चुएशन हो सकता है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट आदमी के फिर भी ऑक्सीजनेशन, ऐसे नेजल प्रॉन्ग चाहिए होता है। लो फ्लो अप टू 6 लीटर, COPD, मॉडरेट निमोनिया, एस्मा, म्यूकस प्लबिंग, पुअर ब्रीदिंग, पोस्ट ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस, इस समय नेजल प्रॉन्ग काम कर जाता है क्योंकि इसका ब्रीदिंग पैटर्न के साथ वो फ्लक्चुएट होता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? तो हमने नेजल प्रॉन्ग को एक तरफ कर दिया, इसको एक तरफ रखो, ठीक है। अच्छा, कैसे रखना है, इसमें एक पॉलीथीन बैग में रखना है, जिप लॉक बैग। अभी जूली ऑर्डर करेगी कुछ जिप लॉक बैग्स, एवरी ऑक्सीनेशन विल बी इन अ जिप लॉक बैग, दिस इज अ गाइडलाइन। दूसरा है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क निकालो, कहां है सिंपल फेस मास्क, ये वाला, फील इट, सिंपल फेस मास्क, देखो पास करो जल्दी जल्दी, सिंपल फेस मास्क देखो, सारे देख लो, क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने क्या बोला, 24 मतलब 21 से लेके 44 45 तक हम नेजल प्रॉन्ग से दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ये हमने 24 टू 44 लिखा, मतलब 21 टू 44 व्हाटएवर, मतलब 21 से ऊपर अप टू 44 45। देख लिया? अब दिखाओ नेजल फेस मास्क, दिखाओ जल्दी जल्दी करो, हो गया? इसको असेंबल कैसे करते हैं, दिखाओ असेंबल कैसे करके फेस मास्क कैसे लगता है। ठीक है, इसमें एक खास बात है, आप देखो इसके अंदर क्या है, साइड पोर्ट है जिसमें रूम एयर को एंट्रेन करता है इसमें, और पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं होता, आप समझ गए ना, साइड पोर्ट होना चाहिए। तो इसमें कब होता है, इसको निकालो, फिर से करो चेक कनेक्शन। तो ये वाला इसमें साइड पोर्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल है, 5 टू 10 लीटर्स तक दे सकते हो इसमें। कितना दे सकते हो, 5 टू 10 लीटर्स। इज इट क्लियर? इसमें भी वेरिएबल रेट के साथ है, साइड से खींचता है, रीब्रीदिंग नहीं होता है। जो नेजल प्रॉन्ग्स से कंफर्टेबल नहीं है उसको ये दे सकते हो। दिस इज ऑल्सो लो फ्लो सिस्टम। इज इट क्लियर?
सो अप टू 55% दे सकते हो, मिनिमम 5 लीटर पर मिनट। अच्छा, इसमें 5 लीटर में सेट करना पड़ेगा आपको यार, 5 लीटर पर मिनट। आप समझ गए? क्योंकि इससे वेस्ट भी होता है, रीब्रीदिंग भी होता, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर हम दिखाओ पार्शियल रीब्रीदिंग मास, दिखाओ पार्शियल नीथिंग मास। किसी ने पार्शियल रीब्रीदिंग मास देखा है? ये देखो, पास ऑन करो। वाइवा बॉसी में ये टेबल में रखा जाएगा, पूछा जाएगा ये क्या है, अच्छी तरह देखो। जल्दी जल्दी करो। रीब्रीदिंग मास में याद रखना, इसमें फ्लो हमें कितना देना पड़ेगा? 6 to 10 लीटर्स। कितना देना पड़ेगा? 6 to 10 लीटर्स। ठीक है, दीज आर ऑल लो फ्लो सिस्टम, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल ऑक्सीजन नहीं दे रहा, आपकी ब्रीथिंग के साथ वो बदलता रहता है। तो रीब्रीदिंग मास में आपको याद रखना, बैक कोलैप्स नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ एयर एक्सेल्ड एयर उसमें भरा हुआ होना चाहिए। तो कभी जाके आपको चेक करना चाहिए, वो किंक नहीं हो जाता, वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, उसकी गर्दन बंद नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए ना? ये फुला हुआ रहना चाहिए, 1/3 ऑफ द एक्सेल गैस इसके अंदर रहना चाहिए। इज इट क्लियर? ये भी लो फ्लो सिस्टम है। कीप फ्लो एनफ, बैक शुड नॉट फुल्ली कोलैप्स, ऐसा चिपक नहीं जाना चाहिए। बैक शुड नॉट, एंड चेक बैक फॉर किंग्स ब्लॉकेज एवरी आवर। कई बार ऐसा हो जाता है, इसको चेक करना है आपको। ठीक है, ये हो गया रीब्रीदिंग मास। फिर रहते नॉन रीब्रीदिंग मास। दिखाओ, वन वे वाल्व दिखाओ, नॉन रीब्रीदिंग। अच्छा, ये यूज करें। नॉन रीब्रीदिंग मास में क्या होता है कि वन वे हाईएस्ट एफआईटी विदाउट फ्लो, एंश्योर रिवर्सर बैग इज फुली इन्फ्लेटेड बिफोर प्लेसिंग। उसमें ना रिजर्वर बैग थोड़ा सा बड़ा होता है। यू कैन से एम्बू इज ए नॉन ब्रीदिंग एनआरएम है। ठीक है, इसमें पूरा भर लो आप, फिर वो कर रो। ठीक है, एम्बू इज ए काइंड ऑफ एनआरएम। ठीक है, वन वे वाल्व है ये। ठीक है ना, इसमें आपने पहले हवा भर दी और एम्बू कर रहा है। सो एम्बू इज, कितने एफआईटी दे सकते हो एम्बू से? अप टू 90%। सो वन वे वाल्व प्रिवेंट्स एयर इंटरमेंट हाईएस्ट एफआईटी विदाउट हाई फ्लो इक्विपमेंट। मतलब ये रिजर्वर बैग है, विदाउट हाई फ्लो सिस्टम आप अप टू 90% दे सकते हो। ये नॉन रीब्रीदिंग है, मतलब नॉन रीब्रीदिंग मास्क है, एनआरएम। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो हमने क्या पढ़ाया? नेजल प्रॉन्ग पढ़ाया, फेस मास्क पढ़ाया, रीब्रीदिंग मास्क, पार्शियल रीब्रीदिंग एंड एम्बू पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, मैं अगर अगेन रिपीट कर रहा हूं, लो फ्लो में आप फ्लो रेट एडजस्ट करते हो, बट पेशेंट ब्रीदिंग पैटर्न, टाइडल वॉल्यूम वेरी करता रहता है, उस हिसाब से ऑक्सीजनेशन फ्लक्चुएट करेगा इसको, इसलिए बार बार मॉनिटर करना है। आप समझ गए ना पेशेंट को, क्यों? प्रेडिक्टेबल ऑक्सीजन नहीं है इससे। नेक्स्ट, हाई फ्लो सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईसीयू में। पेशेंट बीमार है, लंग्स भर गया पानी में, एआरडीएस है, शंट हो रहा है, जीरो है, वीक्यू कितना है? 0 है, सारा मतलब वेंटिलेशन हो ही नहीं रहा। देन यू हैव टू यूज समथिंग जिसमें आपको प्रेडिक्टेबल चाहिए, ऑक्सीजनेशन चाहिए उसको। तो प्रेडिक्टेबल ऑक्सीजनेशन चाहिए होने के लिए आपको वेंचुरी दिखाओ। कहां है वेंचुरी? दिस इज। हाउ मेनी पीपल हैव सीन वेंचुरीज? अगर आप देखोगे हर वेंचुरी में ना एक फ्लो रेट के साथ लिखा हुआ है, आपने देखा? प्लीज पास ऑन वेंचुरी। इसमें एक नॉब के साथ फ्लो रेट एडजस्टेड है वेंचुरी। आप देखोगे हर फ्लो के साथ एक नंबर लिखा हुआ है। इफ देयर इज अ 33%, दिस इज अ फ्लो रेट। आप देखो, घुमा के देखो, नॉब घुमा के देखो, यहां दिखाओ, मैं दिखाता हूं, नॉब घुमाओ, मैच करो उसके साथ। आप समझ गए? एवरी नंबर हैज ए फ्लो मेंशन्ड। इज इट क्लियर? अगर डाउट है तो वेंचुरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, एक बार देख लिया वेंचुरी। आप देखो, नंबर घुमाओगे, जैसे नंबर गेम होता है ना, नंबर घुमाओगे, जितना परसेंटेज चाहिए उतना बोलेगा कितना फ्लो देना है। आप सोच रहे हो कोई बता सकता है ये वेंचुरी कैसे काम कर सकता है? एनीबडी नोज हाउ इट वर्क्स, द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी?
अच्छा मुझे बताओ, हवाई जहाज कैसे उड़ता है ऊपर? हाउ डज एयरप्लेन फ्लाइज? हैव यू हर्ड ऑफ ए थियरी कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम? आप देखो क्या होता है, बर्नौलीज कहते हैं जहां प्रेशर डिफरेंस होता है वहां एयर सक कर लेता है। हवाई जहाज का आपने देखा, यहां से मछली जैसा नीचे का पेट है, ऊपर से है, दोनों का एयर फ्लो डिफरेंट है, ठीक है? तो दोनों का एयर प्रेशर डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर गिव्स यू दैट सक एयर, व्हिच इज कॉल्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का मतलब है हवा खींचेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर चेंजेस। आप समझ गए ना? तो इसके अंदर में, इन अदर वर्ड्स, मान लो आपने वो फ्लूट देखा, फ्लूट के अंदर होल्स होते हैं, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल में आप अपने फिंगर से फ्लूट के होल को एडजस्ट कर सकते हो टू कैलकुलेट द एयर, बिकॉज हवा, ये छेद डिसाइड करता है कितना हवा बाहर से खींचना है। यू अंडरस्टैंड? अगर मान लो बॉडी को चाहिए 80%, दे रहे हो आप 40%, और 40 वो बाहर से खींच लेगा, बिकॉज ये सक करेगा एयर अंदर, बिकॉज एयर फ्लो डिफरेंट है। आप यहां कम है, यहां ज्यादा है, इट विल सक द एयर। आप समझ गए ना? पोर्ट बने होते हैं टू सक द एयर, दिस कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम, बिकॉज एवरी लेवल द प्रेशर इज डिफरेंट। यू अंडरस्टैंड? छेद अपने बना दिया। अगर आप देख रहे हो किसी को हमें 80% देना है, ठीक है, तो 80%, 21% तो खुद ले रहा है, 80% देने के लिए उतना फ्लो आप दे रहे हो, उसमें सेटिंग है, so that it suck that much of air inside. Bernoulli's works on the principle of pressure difference. अगर P1 ऊपर का प्रेशर is more than the lower pressure, तो airplane goes up because the pressure, the air moves, pushes the aircraft upwards. आप समझ गए ना? If the pressure difference is more, यहां मान लो हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, ये नीचे खींचेगा, यहां लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर, ऊपर खींचेगा। सो फ्लो इज द फंक्शन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो क्या होता है, अलग अलग छेद के हिसाब से अलग अलग फ्लो हम डिसाइड करते हैं, तो इसमें हर एक का फ्लो लिखा हुआ आता है। फ्लो आपको अप टू 60 लीटर तक सेट करना पड़ता है। आप 98% दे सकते हो, बट उसमें आपको 60 लीटर देना पड़ेगा। 60 लीटर सिलेंडर से तो आएगा नहीं, तो आपको हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन देना पड़ता है। इसमें FiO2 कैन गो अप टू 21 से लेके 100% आप FiO2 दे सकते हो, बट आपको फ्लो रेट भी बढ़ाना पड़ेगा यूजिंग वेंचुरी प्रिंसिपल। जितना पोर्ट साइज है, जितना छोटा छेद है उतना फ्लो कम है, जितना छोटा छेद बड़ा है उतना फ्लो बड़ा है। उसमें आप देखो छेद के हिसाब से फ्लो रेट लगा हुआ है, 10 लीटर, 5 लीटर। इज इट क्लियर? सो delivers oxygen faster than, no room air dilution, creates low PEEP। मतलब इससे क्या होता है कि अब लंग्स खुल जाता है। जब आप हाई फ्लो देते हो, प्रेडिक्टेड ऑक्सीजन देते हो, ऑक्सीजन की प्रेशर से लंग्स खुल जाता है। सो यू आर गिविंग मोर ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई। अगर लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं रहा, हाई फ्लो से ऑक्सीजन पहुंचना शुरू करता है, बिकॉज इट सक्स द एयर। इट्स कॉल्ड वेंचुरी प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो इसमें आप, अगर आप देखोगे कहां है वेंचुरी, ये देखो, ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो 2 सर्कल है, इसको आगे ऐसे खींचोगे, अगर आपको 28% देना है, 4 लीटर मांग रहा है, आप 50 में कर दिया, छेद चेंज हो गया, कितना मांग रहा है? 15 लीटर्स। यू अंडरस्टैंड? 45% देना है, 12 लीटर्स। 40% देना है, 10 लीटर्स। आप समझेंगे ना? बेस्ड ऑन द, इसके पोर्ट साइज चेंज होने लग जाता है, उतना हवा बाहर से खींच लेता है। यू अंडरस्टैंड? उतना हवा आपको देना पड़ेगा। सो दिस वेंचुरी वर्क्स ऑन द पोर्ट साइज एंड अकॉर्डिंगली आपको ऐसा नहीं है 45 लगा दिया, बट 45 लगा दिया तो आपको 12 लीटर देना भी पड़ेगा वहां से। इज इट क्लियर? सो हाई फ्लो सिस्टम, जहां लंग्स में भर गया पानी, निमोनिया है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं कर रहा, उसको हाई फ्लो सिस्टम देना पड़ेगा। ठीक है? सो वेंचुरी प्रिंसिपल, ये देखो, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ब्लू इज 24%,
ये अलग अलग, ये सारे अलग कलर कोडिंग वेंचुरी मंगवा लेना आप, एक से इनको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज ऑर्डर दिस कलर कोड वेंचुरीज। याद रखना, ब्लू इज 24%, व्हाइट इज 28%, येलो इज 35%, रेड इज 40% एंड ग्रीन इज 60%। जूली, लेट अस बाय कलर कोड वेंचुरीज, ताकि ये नंबर घुमाने की जरूरत ही ना पड़े। इज इट क्लियर? Will you order this color code Venturis? So COPD, when to use Venturi? COPD control to avoid CO2 detention, when precise CO2, जब आपको exactly oxygenation number देना पड़ेगा, उसलिए वीनिंग में नर्सिंग टिप्स क्या? ऑलवेज यूज द करेक्ट कलर। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पूछूंगा इंटरव्यू में, टेल मी येलो कितना परसेंट है? सो येलो कितना है? 35%। रेड कितना है? 48%। व्हाइट कितना है? 38%। ग्रीन कितना है? 60%। सो इसके मतलब अगर आप किसी को मैक्सिमम ऑक्सीजन देना चाहते हो, कौन सा कलर यूज करोगे? क्या करोगे? ग्रीन। और आपको मिनिमम देना है ब्लू। ब्लू इज द लोएस्ट, ग्रीन इज द हाईएस्ट। तो वेंचुरी डज नॉट रिक्वायर ह्यूमिडिफिकेशन एंड लो फ्लोज, एग्जैक्ट FiO2। तो खास बात क्या है वेंचुरी का, एग्जैक्टली आप FiO2 उतना ही दे सकते हो जितना चाहिए। तो पेशेंट को ना, तो आपने क्या सीखा? लो फ्लो सिस्टम एंड हाई फ्लो सिस्टम। हम ये सारी चीजें हो गई। बिफोर आई हैंड ओवर टू दिस पीपल अबाउट द मास्क, अब अबाउट सिलेंडर्स। देखो सबसे पहले ये चीज याद रखना, हैव यू एवर सीन दिस? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कंसंट्रेटर क्या किया? जैसे मैंने बोला एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, बाकी 78% है नाइट्रोजन। इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, इसका नाइट्रोजन सीव, उसको छान लेता है, और बाकी ऑक्सीजन आपको 25%। जैसे हम दही जमाते हैं ना, दही कैसे जमाते हैं? दूध को गाढ़ा कर करके पनीर जमाते हैं, वैसे ये कंसंट्रेट करता है 21% को। 21 अप टू 98%, 95% तक दे सकते हो। सो क्या करता है? नाइट्रोजन को हटा के एयर को कंसंट्रेट करने लग जाता है, एयर को ट्रैप करता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जैसे हम दही जमाते, वो कंसंट्रेट करता है। इट इज कैन बी वेरी यूजफुल यूज इन डोमिसाइल। इसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर बॉटल भी लगता है, इसको हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ये प्लग पॉइंट प्लग पे लग जाता है, लगाओ। ये सारे, हाँ यहां आ जाओ, वहां लगाओ। ये देखो आवाज करेगा, ये ट्रैप कर रहा ऑक्सीजन। इट इज ट्रैपिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन को फिल्टर कर रहा है। सो बहुत इंटेलिजेंट टेक्निक है। आपने एयर से नाइट्रोजन को हटा दिया, कितना है नाइट्रोजन? 78%। 78% नाइट्रोजन को हटा दिया, बाकी ये कंसंट्रेट। देखो कितना दे सकते हो? 1 लीटर मीन्स +4, 2 लीटर मीन्स +8, 3 लीटर अपने तक आप 44-45% तक दे सकते हो। आप समझ गए ना आप उसको? तो इससे होम ऑक्सीजनेशन थेरेपी, ये COPD में यूज होता है, क्रॉनिक वेंटिलेटरी डिसऑर्डर्स में यूज होता है। अब हम देखते हैं, अब ये देखो सिलेंडर। तो एक तो ये कंसंट्रेटर, दूसरा है सिलेंडर जिसमें हम हॉस्पिटल में या घर पे स्टोर करते हैं। देखो सोर्स क्या होता है हमारे हॉस्पिटल में? सेंट्रलाइज हॉस्पिटल लिक्विड टैंक और मैनिफोल्ड होता है। हमारा ऑक्सीजन जो बाहर से आता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, याद रखिए। उसको लिक्विडिफाई कर जाता है। उसको क्या होता है? ऑक्सीजन का ना एक -150 एग्जैक्टली नहीं पता हो, नेगेटिव टेम्परेचर में वो फ्रीज कर लेता है। हर एक एलिमेंट का अलग अलग टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग है। नाइट्रोजन का अलग फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का। एक सर्टेन टेम्परेचर में अगर ऑक्सीजन को फ्रीज कर लो तो लिक्विड बन जाता है। तो हॉस्पिटल में जो मैनिफोल्ड में जो ऑक्सीजन आता है ना, आपने देखा ना बड़े बड़े सिलेंडर, वो लिक्विड ऑक्सीजन आता है। सेंट्रल हॉस्पिटल लिक्विड टैंक और मैनिफोल्ड, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल सप्लाई को क्या कहते हैं? मैनिफोल्ड और मैनिफोल्ड। ठीक है। दूसरा रेगुलेटेड, अच्छा जो आपने सर के ऊपर देखा है फ्लोमीटर, कितना प्रेशर होता है उसमें? रेगुलेटेड एट 4 bar टू बेड साइड फ्लोमीटर्स। फ्लो अप टू कितना दे सकते हो? पीछे से 15 लीटर तक दे सकते हो। कितना? पीछे वाले से 60 लीटर नहीं दे सकते हो। अगर किसी को 60 लीटर देना है, सिलेंडर रखना पड़ेगा। बेड सर के ऊपर जो फ्लो मैनिफोल्ड है आपका, कितना दे सकते हो?
विल यू रिमेंबर 15 लीटर? प्लीज डोंट गिव 20 लीटर, वो फट जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, दिस इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, देयर स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट्स होता है, आपने देखा ना वॉल आउट खट से लगाते हैं, वो आपको पता ही है। ट्यूबिंग, ग्रीन ऑक्सीजन ट्यूबिंग 2 मीटर शॉर्ट और 4 to 6 मीटर लॉन्ग, ये ग्रीन ट्यूबिंग होता है ना इसके अंदर, नॉर्मली कलर कोड ग्रीन होता है ना। एंड एडवांटेज अनलिमिटेड सप्लाई, रिस्क फ्लो फेलियर इफ द वॉल इज अनटरप्टेड, मतलब आपको देखना पड़ेगा पीछे से हवा आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चेक करो। अच्छा, अब ऑक्सीजन सिलेंडर देखो, सबसे स्मॉल सिलेंडर, इससे भी छोटा आता है क्या? इसको तो ये कह रहे सीडी स्मॉल। अच्छा, ये सीडी टाइप होगा, ये कितना है? बी टाइप होगा। शॉर्ट ट्रांसफर, एफ इज मीडियम, मीडियम आता है 1360 ml, जी इज लार्ज 3400 ml, और जो सबसे बड़ा वो जंबो है। हमारे पास एक बी टाइप है, इससे भी छोटा, ये बी टाइप है, ये कौन सा है? तो हमने सीडी नॉर्मली देखो, इससे भी थोड़ा बड़ा, इसमें कैपेसिटी कम हो, वो मेरे ख्याल से बी टाइप है, वो देखो वो बी लिखा हुआ है, लिखा ना बी टाइप, ये बी टाइप है। क्या है ये? इसके बाद एक आता है जो नॉर्मली आजकल हम कहते हैं उससे भी सीडी, तो 400 ml से नीचे बी, देन सीडी, फीडियम, सबसे बड़ा जंबो होता है। जंबो में तो सिलिंडर्स आर ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर, ऑलवेज स्टोर अपराइट, चेक प्रेशर गॉज बिफोर। क्या चेक करना है? प्रेशर गॉज। एक बार बताओ, प्रेशर गॉज कहां से होता है? ये चेक करना है। अगर इसमें 0 है तो इसको मतलब सिलेंडर नहीं है, कई बार वो गर्मी में लीक हो जाता है। तो प्लीज चेक द प्रेशर, आपका जॉब होगा, जो आपके वहां अदर देन आईसीयू का सिलेंडर, प्लीज चेक योर प्रेशर। और क्या? टर्न ऑफ द वेल्व व्हेन नॉट इन यूज, वेल्व को ऑफ करना है। नो ऑयल और ग्रीस, कई बार क्या ऑयल ग्रीस से दूर, क्योंकि वो सपोर्टर ऑफ कंबशन हो सकता है। अब मुझे बताओ कैसे खोलते दिखाओ, हाउ टू ओपन अप ए सिलेंडर। आपको सिलेंडर, मैंने आपको बोला है हर एक बैग में सिलेंडर लॉक वाला का चाबी होना चाहिए, नेजल प्रॉन्ग होना चाहिए, वेंचुरी होना चाहिए। सो वी विल ऑर्डर जिप लॉक बैग, ठीक है, वी विल ऑर्डर जिप लॉक वेंचुरी कोड्स। देखो ओके, बोलो बोलो स्लोली, स्लोली, झटके से। एंटी क्लॉक ही खुलेगा हमेशा, ये ऑलवेज एंटी क्लॉक खुलता है, स्लोली खोलना है, ज्यादा झटके नहीं करना। उसके बाद प्रेशर गेज में देखना है, इसमें प्रेशर है नहीं, देखो, तो उसके बाद ही इसको, क्योंकि खोलने के पहले नहीं देख पता पाएगा, तो स्लोली एंटी क्लॉकवाइज जाना है, फिर उसका प्रेशर चेक कर। नॉर्मली प्रेशर कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए गॉज के अंदर? सर इसमें 300 तक आएगा, 300 psi होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप चेक करोगे, और एज यू बंद करो अब, ठीक है। इज इट क्लियर? सारे सीख जाओगे ये। हर फ्लोर में एक चाबी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नीचे दौड़ रहे हो चाबी लेने के लिए। इज ओके? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो ऑक्सीजन ट्यूबिंग, शॉर्ट ट्यूबिंग ये वाला है, छोटा ट्यूब ये है, ये वाला कहां गया? हमारे फील्ड में ये लॉन्ग ट्यूबिंग है। लॉन्ग ट्यूबिंग क्या होता है? कईयों की ऑक्सीजनेशन बहुत कम है, बट उसको चलाना है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करना है, ये लॉन्ग ट्यूबिंग है। लॉन्ग ट्यूबिंग में आपने लगा दिया, इसमें मान लो इस पे लगा दिया आपने, लगाओ बेटे, एंड लगाओ, और पेशेंट यहां बैठा हुआ है, वो टीवी देख रहा है, घूम रहा है, लॉन्ग ट्यूबिंग। अच्छा पीछे से चला गया, अच्छा वो उसको लगाओ, एंड में लगाओ बेटे। आप समझ गए? Same oxygenation. So long tubing is for mobilization and for rehabilitation. So long tubing oxygenation we use in chronic lung diseases, lung fibrosis, COPD, ventilator failure, और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के अंदर भी व्हील होता है, यू कैन व्हील द। तो बेस्ट थिंग इज दैट घर पे आप ऑक्सीजन कंसेंट्रेट यूज करो। ये नाक पे लगाओ बेटे, ऑन करो, वहां कान के पीछे लगाओ, अब ऑन करो। अच्छा पता कैसे चलेगा ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं? एक ग्लास में थोड़ा पानी दो बेटे, कोई भी वाटर, जस्ट सिंपल वाटर बेटे, इसको हाँ, उसको एकदम व्हील करके पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ। देखो कई बार क्या होता है, एक पेशेंट बहुत हाइपॉक्सिक आया है, एम्बुलेंस नहीं है, आप सिलेंडर में पाइप लगा के इससे ऑक्सीजनेशन कर सकते हो। यू शुड हैव वन लॉन्ग पाइप इन आईसीयू। और आगे खींचो, आगे खींचो, ये कहां अटक रहा है? खींचो खींचो, नहीं ठीक है खींचो, जस्ट गो। देखो कितना लंबा पाइप है। अब अगर आगे ले जाओ,
नहीं ठीक है ठीक है। सो इसके मतलब इस तरह का पाइप अगर आपके सिंपल चीज एक अगर आईसीयू में इसका लॉन्ग पाइप है, यू कैन सेव लाइफ ना हाइपॉक्सिक। सो वी शुड हैव वन लॉन्ग पाइप। नहीं ठीक है, आप देखो एक लॉन्ग पाइप से हम कितना दूर, मान लो पेशेंट एम्बुलेंस में है, सिलेंडर में नहीं है, एक लॉन्ग पाइप से हम कनेक्ट तो कर सकते। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है, यू कैन सेव ए लाइफ विद अ लॉन्ग पाइप। तो आपने लॉन्ग पाइप, हाँ ठीक है ठीक। सो लॉन्ग पाइप ऑक्सीनेशन है, जो जिनको है प्लीज गो थ्रू यूट्यूब, उसमें सारा कुछ मेरा भाषण होगा, जो भी मैं बोल रहा हूं एवरीथिंग विल बी देयर, इट इज बीइंग रिकॉर्ड। सो बहुत अच्छा सीखा आपने, लॉन्ग पाइप से आप ऑक्सीनेशन कर दो। आपने भी देखा मेरे पास जो सीरियस ऑक्सीनेशन लो, आप उसको लॉन्ग पाइप से वेंटिलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने सीखा, लो फ्लो हाई फ्लो सिस्टम कैसे वॉल के साथ। तो हमारा टाइट्रेशन रूल्स फॉर क्या है, नॉर्मल पेशेंट में हम कितना लाएंगे, हमारे साथ बोलो 94 to 98%। बट जिसका हाइपर कैप्निया है, हाइपर कैप्निया मीन जिसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, उसका ऑक्सीनेशन हमें लो रखना है। कितना रखना है, 88 to 92। क्यों, ज्यादा दोगे तो उसका कार्बन बढ़ जाएगा और बेहोश हो जाएगा, बिकॉज वो कम ऑक्सीनेशन में उसको सांस लेने की आदत है। दे आर यूज्ड टू हाइपॉक्सिक ड्राइव, लो ऑक्सीनेशन ड्राइव। इन ए सीओपीडी whose carbon dioxide is already high, if you give them more oxygenation, carbon goes up, then he can land up into ventilator. So in COPD patient and hypercapnic patient, you have to keep 88. तो माइल्ड हाइपोक्सिया नेजल, मेरे साथ बोलो, अगर माइल्ड हाइपोक्सिया है नेजल कैलुना, फ्लो 2 to 4 लीटर, टारगेट 94 to 98%, इंक्रीज फ्लो स्टेप ऑफ द डिवाइस अप टू 6 लीटर। मॉडरेट हाइपोक्सिया सिंपल मास्क 5 to 8 लीटर और नॉन रीडिंग और वेंचुरी अप टू 35। पर सीवियर हाइपोक्सिया में हाई फ्लो सिस्टम देना पड़ेगा, एनआरएम एस्केलेट टू एनआईवी। अभी आपको बताएंगे, एनआईवी लगा दो उसके ऊपर। एनआईवी मतलब मास वेंटिलेशन दो उसको, बाइपैप भी दो, ऑक्सीजन भी दो साइड से। ये देखो आपने बाइपैप भी लगा दिया, एनआईवी भी लगा दी, यहां से ऑक्सीजन भी जा रहा है। ये है एनआईवी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। एआरडीएस में हाई फ्लो सिस्टम और एनआईवी अप टू 96%, और कई बार उल्टा करना भी पड़ता है, प्रोन वेंटिलेशन। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर सीओपीडी एक्सर्वेशन, एआरडीएस निमोनिया, जितना सीवियर निमोनिया है, जितना सीवियर डिजीज, उतना आपको हाई फ्लो सिस्टम चाहिए। अगर हाई फ्लो वेंचुरी से इंप्रूव नहीं कर रहा तो आपको मास वेंटिलेशन विद साइड पोर्ट चाहिए, ठीक है। इससे आपको प्रेडिक्टेबल वेंटिलेशन होता है। ये सारे स्लाइड्स आपके पास है, प्लीज गो थ्रू इट। सो व्हाट एवरी आईसीयू नर्स मस्ट नो, मेरे साथ बोलना है। Number 1, know your targets. Number 1, always check the prescription of SO2 to target. Never assume 100% better. Over oxygenation kills. टारगेट देखना पड़ेगा। अगर वो ड्राउजी पेशेंट है, ये मान के चलना वो हाइपर कैपनिंग है, तो आपको पहले अपने आप से पूछना है कितना टारगेट रखना है, एकदम नॉर्मल रखना है या 88 रखना है। नंबर 2, चेक द इक्विपमेंट। क्या क्या इक्विपमेंट, इंस्पेक्ट ट्यूबिंग, कनेक्शन, मास फीड, ह्यूमिडिफायर, वाटर लेवल, लूज कनेक्शन, ये सब, उसमें सिलेंडर में हवा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, कनेक्शन ये चेक करना है। नंबर 3, अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। अगर उसको आपको लगता है पूरा सफेद लंग है तो वेंचुरी लगाओगे, एआरडीएस में तो हाई फ्लो सिस्टम, निमोनिया में ट्रीट। और सबसे पहली बात है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। यही आप लिखोगे कितना फ्लो रेट दिया है, कितना FiO2 मेंटेन कर रहे हो, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ये करते हो। एंड हाउ डू कैलकुलेट रेस्पिरेटरी, बेड के हेड पे जाके खड़े होकर उसकी मूवमेंट हाथ लगा कर भी दे सकते हो। Keep one hand on the chest, one on the abdomen. Movement of the hand से आप रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट कर सकते हो। देन एस्केलेट, अगर आप तक जो वर्स हो रहा है उसको आप एस्केलेट कर दोगे, लो फ्लो से हाई फ्लो में ले जाओगे, और कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन व्हाई द डिवाइस इज ऑन। क्योंकि याद रखना, जिसका ऑक्सीजन कम हो जाता है, मेरा हो आपका हो, एंजाइटी होता है उसको, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, उसको एंजाइटी रिलीव करने के लिए रीएश्योर कर, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, वी आर ऑल देयर, एवरीथिंग विल बी फाइन, रीएश्योर करो। तो ये आपकी लर्निंग है, कीप रीएश्योरिंग द पेशेंट। एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा देने से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। सबसे पहले एआरडीएस लाइक, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, फायर हैजर्ड हो सकता है। कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के कारण आग लग जाती है। अभी रिसेंटली एक एम्बुलेंस ब्लास्ट कर गया था साउथ दिल्ली में, वो गर्मी के कारण। अच्छा, दूसरा एब्जॉर्प्शन, कई बार ज्यादा ऑक्सीजन देने से एल्वियुलर कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को निकाल देता है लंग से, तो कोलैप्स हो जाता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टिसिस। म्यूकोसल ड्राइंग, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन दो जिसको जरूरत नहीं, उसका ड्राई होने लग जाता है म्यूकोसल, वो भी प्रॉब्लम है।
CO2 रिटेंशन हो जाता है अगर COPD में ज्यादा ऑक्सीजन दोगे, आप समझ गए ना। और लास्ट में हाइपरऑक्सीमिया, अगर बच्चों में, अभी तो हम निक्कू नहीं चला, ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो रेटिना खराब हो जाता है, इसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी इन नियोनेट्स। तो ये सब चीजें याद है, सब आपको मिलेगा। कोई क्वेश्चन पूछना है, हाँ या ना? एनी क्वेश्चन? सो क्विक रेफरेंस, ये आपको हर एक को आना चाहिए। नेजल कैल्यूना में क्या होना चाहिए, प्रोंग सिंपल मास में कितना होना चाहिए, नॉन ब्रीदर में बैक मस्ट बी इन्फ्लेटेड, वेंचुरी मास में कलर कोड यूज करो, HNFC में वाटर लेवल देखो, CPAP बाईपैप में मास सील देखो, जो आप अभी बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीनेशन। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, मेंटेन द लॉग बुक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नाउ आई विल रिक्वेस्ट, आप मास के बारे में बताइए। एनी क्वेश्चन? अभी ये आपको बाईपैप CPAP का इंटरफेस मास के बारे में बताइए, जस्ट टॉक अबाउट इट। Thank you so much, sir. So good morning all. थोड़ा सा जल्दी करिएगा, ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट। हाँ, My name is Ram Sir. मैं फास्ट टेक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली। फास्ट टेक